Yeah. So hopefully everyone's mics are turned off. And hi everyone, good afternoon. This is Madhya Yasin from Learning Minds. Welcome to our free webinar, Strategy versus Execution Gaps. And I'm delighted you're here. Thank you for investing your time with us. So you all might already be aware about Learning Minds, but let's start from introducing our company. And as you all know, we empower teams and leaders through corporate training and coaching. So keep in touch with us for future events. And this is one of our effort where we believe that learning changes life. So hopefully the webinars will be keep coming on, but let's start here today with project management. And it is my pleasure to introduce our expert speaker, Fahad Ahmed. As he brings over 20 years of project and program management experience and across multiple industries. Um, our project management certified professional and former president of PMI's Karachi chapter as well. So I'll happily hand this over to Fahad, and everyone please enjoy your session. Assalamu alaikum everyone. कैसे हैं आप लोग? Can you hear me? Okay, great. Yes, we So can. thank you, Zabardast. So a very good early evening to everyone, and thank you for the introduction. आज का जो webinar है, that's very close to me, and apart from what we will be discussing, one of the things that I really want to share upfront is कि एक precursor है एक program का execution excellence that we will be starting. Learning Minds will be starting very shortly. Make sure organization and fantastic individuals like you can benefit from it and also can learn from the real experiences. So without further delay, I will not keep you waited. So मेरा नाम फहाद अहमद है, and quite a few of you maybe already know me. I've been into training and consulting for almost 15 years now. I've been into tech industry for almost over 2 decades. So what I have learned over the period of time, apart from project management and program management, that with the passage of time, experiences बढ़ता है इंसान के, और हम तमाम लोग चूंकि बहुत यूनिक एक्सपर्टीज रखते हैं, हम तमाम लोग यूनिक एक्सपीरियंसेस रखते हैं, and then but there's some roadblocks that comes our way. It has a very common nature, whether you are in any banking industry, insurance industry, healthcare industry, or any consulting industry. It happens to all of us. So how to navigate all of those challenges and make sure that we tend to achieve our objective as not as smooth as possible, but as realistic as possible. So today's talk, today's discussion, conversation. अच्छा, मैं जब भी बात करता हूँ, I would like to have people interact more. हम chat में भी देखते रहेंगे. इसके अलावा you're free to ask questions if you want to. If you want to take it to the end, I'm happy to answer questions at the end. If you want to ask me and say फहाद रुक जाएं, मुझे इस पे क्लैरिटी चाहिए, आपसे बात करनी है, मेरा डिफरेंट ओपिनियन है, yeah, I think I do not resonate at all with you, so we can always take a look at it. So the first thing that I have that came to our mind is when bigger projects. I'm sure that all of you or all of us have been part of projects, bigger projects, medium projects, smaller projects, whatever projects they are. So, but we have all been part of those projects since beginning, since the middle, maybe sometimes. Some of the unfortunate ones, including myself, are being initially hand over the projects when they're towards the end, and they are not. Excuse me. Okay, sorry. So, it happens to all of us. आप किसी भी स्टेज में ज्वाइन करते हैं और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कभी भी मोस्टली जो है ना वो
हेल्दी साइंस या हेल्दी मेमोरीज लेके नहीं आते. सो whether it's transformation, non-transformation, change management, non-change management, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हो गए, या लेट सपोज आपके कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो गया जो आपको फाइनेंशियली जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है. सो वो चीजें जो तमाम की तमाम होती हैं वो आपको आपको ना कभी कभार बहुत पूरी तरह डिरेल कर देती है. So every transformation starts with optimism plans. We are all very optimistic. हम बहुत हुआ हो करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, बहुत तालियां बजती हैं शुरू में. And most importantly, there's a lot of PowerPoint circulating around कि ये होगा, वो पिक्चर होगी, वैसा पिक्चर होगा, हम जब करेंगे तो ऐसा होगा. And deep down inside, we all know that uh, few of us, few of us doesn't believe that it's gonna work. और जो ये बीज होता है शुरू से कि uh, whether it's going to work or not, that disbelief or lack of belief is the main thing that hampers the progress. So whether you start or not, most of the projects are broken before the first milestone. आप कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बना लें, आप कितना फर्स्ट माइलस्टोन जब आपका डिरेल होता है. और मैं सिर्फ बात ये नहीं कर रहा कि आपकी टाइम लाइन्स जो है ना वो मिस हो रही है, आपका मोरल डाउन है, लोग लोग जो हैं वो डिसबिलीव के अंदर हैं, दे आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, दे डिडंट से you know they're not on the same page as far as requirements are concerned. This is all happening because not the strategy is wrong, but because there was never a belief, the belief was never made from the boardroom to the basement. Now, जब आपका बोर्डरूम की जो भी स्टोरी आप पिच करते हैं वो निकल के उन लोगों तक नहीं आती है जिन लोगों ने एक्चुअली काम परफॉर्म करना है. वो ट्रस्ट उनके पास नहीं होता है, वो बिलीफ उनके पास नहीं होता है, तो आप हमेशा इसी तरह की chaotic सिचुएशन के अंदर हमेशा जो है ना फंसे रहते हैं. याद रखिएगा, एंड वी विल डिस्कवर दिस इन डिटेल एज वी मूव फॉरवर्ड. सो the biggest thing is that people who are working along has to have their say and has to have their trust in the strategy what is being executed. If your project feels off because milestone one, before milestone one, you're not imagining it properly. Why? आपने सोचा ही नहीं है कि एंड रिजल्ट कैसा होगा, या उस कमरे के अंदर जितने लोग मौजूद हैं या उस टीम के अंदर जितने लोग मौजूद हैं वो तमाम के तमाम एंड रिजल्ट अलग तरीके से सोच रहे हो. अल्फाज बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं, ग्राफिक्स बहुत अच्छी इस्तेमाल की है, वर्ड आर्ट बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है, बट डू यू एक्चुअली बिलीव इट इज नरेटिंग द सेम स्टोरी, और एटलीस्ट समबडी एवरीबडी हैज द सेम manuscript of the story that you want to have them? That's the most important thing that we all need to look into. Now, जब हम कॉन्फ्रेंस के या किक ऑफ मीटिंग के अंदर होते हैं या जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है, ओके, is there any question? Okay, thank you, Umar, Osama Shahid, for joining. So when we are into that kickoff meeting or initiation meeting or decision meeting where uh, the senior management prerogative or imperative is being shared with the middle management or leadership team, you know, आपने देखा होगा जब आप सारी बातें सुन लेते हैं कि हम ये काम ऐसे करेंगे, इससे हमें ये फायदा होगा, we are doing that, and then there's a long pause, खामोशी, silence, and nobody says something. Why? Because आप और मैं दोनों, nobody wants to look bad. Now that silence, there's that pause is taken as what? Agreement, consensus, or commit. But याद रखिएगा, agreement is not equals to alignment. If we're not aligned at all, if everybody, 4 people, 5 people, 10 people, 15 people, 20 people in that room, or 20 people in that project team, or 20 people in that portfolio team, or 20 people in that program team are not aligned, you will be getting into a branded chaos. हर जगह हुआ होगी, बैनर्स लग जाएंगे, वी आर डूइंग दिस, बहुत सारे लोगों की ये उस साल के लिए तरक्की के मराहिल आसान हो जाएंगे, बट इवेंचुअली जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, दैट मिसअलाइनमेंट विल गिव यू सच एन हेडेक that you will bleed money,
You will bleed blood, and also you will bleed resources. Silence is never is equals to consensus. Kickoff is never equals to commitment. Now the most important thing is कि लोग कहते हैं यार खामोश रहें, बोलेंगे तो बुरा बन जाएंगे. Now the most important thing is कि जब आप शुरू में नहीं बोलते, मिडिल में आखिर में बोलते हैं, तो वही मैनेजमेंट आपको आके बोलती है कि आपने पहले क्यों नहीं बोला. हम तो एक आइडिया लेके आए थे. It's your job to evaluate that. It's you are the knowledge expert. You are the board of advisors. Now, true alignment is when everyone translates the same strategy into the same action. Now, if we represent different units, that units has to be very aligned. My output should complement your output. Your output should complement to somebody else output. If it is not doing that, I'm just focusing on my own unit, my own department, that इससे तो मैं ये काम कर लूंगा, इससे जो मैंने 35 मेरी वर्कशीट्स पे या एक्सेल शीट से मेरे एनुअल रिसोर्सेज काम करते हैं, वो ऑटोमेट हो जाएंगे, तो मेरा इतना टर्न अराउंड टाइम काम हो जाएगा. भाई वाह, मैं तो इससे क्यों ना ये सारे काम कर लूँ. नाउ इफ वी आर लुकिंग इनटू दैट, आई एम सॉरी, we all are heading into different directions. We assume clarity, what we have is polite confusion. तमाम लोगों के साथ हमें एटलीस्ट ये रियलाइज करना है कि व्हाट दे थिंक. इफ देयर इज अ डिस्कनेक्ट, put it on the table. If there is a apprehension, put it on the table. If there is a disagreement, put it on the table politely. Now, people think if we disagree, we become bad. Leadership is not a likable story. Now, why a project start and why they stall? Project start for two reasons. याद रखिएगा, तमाम लोगों को लगता है कि हम हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं कंपनी की, जो 75 साल से नहीं हुई थी, और आज वो मैं कर दूंगा, तो उसके बाद कंपनी वहां टेक ऑफ कर जाएगी मार्स के से आके, जहां उससे पहले वो कभी नहीं गई थी. या हम एक प्रॉब्लम को एक पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो इससे पहले आज तक कोई नहीं कर सका, तो मैं करूंगा या आप करेंगे. हम वो चीते लोग हैं, जब हम ये काम करेंगे उसके बाद कंपनी के सारे मसले हल हो जाएंगे, और देखना फिर कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, रेवेन्यूज भी पर पहुंच जाएंगे, कट लॉसेस भी कट डाउन हो जाएंगे, रिसोर्स इम्प्लीकेशन भी कम हो जाएगी. ब्रदर सिस्टर, सॉरी, most people in that kickoff room doesn't believe in the neither of those things. So जो आपको टॉप मैनेजमेंट के ऊपर, बोर्ड ऑफ एडवाइजर या टॉप मैनेजमेंट आपको जो जो आपको लेके आती है ना, आपको बाय कराने के लिए, इट इज nothing to do with actual problems. They need only momentum. They need things to show on the paper कि यार P&L कैसे improve कर रहा है. मैं ये काम P&L improve नहीं कर रहा, तो ये काम हो रहा है, उसकी वजह ये है. सारे लोग वहां लगे हुए. Remember, momentum dies the moment meaning disappears. Now, we all are really, excited people. हम में excitement ऐसी होती है कि हम बस कुछ करके दिखा दें. हम ये दिखा देंगे कुछ हो रहा है. Now, how many times you actually put in जबरदस्ती का progress in a progress report to show कि needle is moving? भाई, मेरी बहन, if the needle is not moving, that's also an information, na? Now, if we cannot understand that, okay, not every time progress is mumkin, or progress is uh, actionable progress is happening, it doesn't mean there's nothing happening. But if there's nothing happening, that's also happening because somebody is not doing work. People are not aligned. You have disconnects in ideologies. You maybe have some conflict resolutions to do. So ये वो तमाम बैकग्राउंड वर्क है जो कि प्रोजेक्ट शीट के अंदर नजर नहीं आता, क्योंकि हमने, या प्रोग्राम की शीट के नजर नहीं आता क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छा दिखाना है, हमने उसको इतना फैंसी दिखाना है, या वो एक बंदे ने इस तरह शाइन करना है कि मैं वो हीरो हूँ जो कि मैं तमाम चीजों को लेके चल रहा हूँ. एट द एंड ऑफ डे नथिंग इज हैपनिंग एट द बैकग्राउंड. नाउ दैट्स द रिंग, दैट्स द रीजन प्रोजेक्ट स्टॉप्स. हम रियलिटी से मुंह छुपा लेते हैं ऑस्ट्रिच की तरह, और ये देखते हैं कि यार हमें बस प्रोग्रेस दिखानी है, हमें जो बस प्रोग्रेस दिखानी है, हमें ये दिखाना है कि मेरी वजह से कुछ नहीं रुका, ये बग मेरे पास मेरी टेबल पे नहीं रुकी.
ये किसी और की टेबल पर कि मैंने तो अपना काम कर। It's very very much important that we have to come out of that mindset. अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि वो मोमेंट जब वेर मोमेंट स्टार्ट्स टू वीक, सही है, जब हम तमाम जितने भी, मैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स की इसलिए बात कर रहा हूँ, दिस webinar is basically about transformative projects, and this is leading towards the two-day workshop that we will be conducting on 25th and 26th, from chaos to clarity, how managing transformative projects जो critical होते हैं, जो बहुत complex होते हैं, so उसकी कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। So every transformative transformation starts with clarity. Now, हम शुरू में क्लियर तो होते हैं हमें करना क्या है, लेकिन लीक कहाँ करते हैं? तीन जगहों पे करते हैं। नंबर वन, ट्रांसलेशन। नंबर वन, ओनरशिप। नंबर टू, ओनरशिप। एंड नंबर थ्री, फीडबैक। व्हाई? नाउ, ये तीन वो चीजें हैं जो अलोंग द वे हमेशा पार्ट एंड पार्सल होती हैं। अगर आप इनको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, देन यू गेटिंग टुवर्ड्स रोड ब्लॉक और इन अ डिच और आउट ऑफ द फायर इनटू द फायर पैन, व्हाटएवर यू कॉल इट। Now, always remember that the enemy of execution isn't chaos. It's quite a misalignment. Now, होता क्या है, सब खामोश रहते हैं। मैं भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस वाली बात। हम सब खामोश रहते हैं, बात कोई नहीं करते, because we don't want to, what, doesn't look bad. We doesn't want to be a roadblocker. We doesn't want to be perceived as a troublemaker. We don't want to be perceived as somebody who's dumb. अच्छा, एक मैनेजमेंट का ये भी बड़ा अच्छा एक जो है ना वो ट्रम्प कार्ड होता है कि आपके सवाल पूछेंगे, दे विल मेक यू फील डम। यार आपको ये नहीं पता, आई एम सॉरी, गो बैक एंड आपने फनी चीज देखी थी, वो उसका जवाब उनके पास भी नहीं। मेजॉरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स क्यों स्टार्ट होते हैं कि सीईओ को कुछ अच्छा लगना होता है, उसको बोर्ड पर दिखाना होता है मैं कुछ कर रहा हूँ, या इस प्रॉब्लम को जो आज से 30 साल पहले तो नहीं हो सकी, मेरे आने के बाद 30 दिनों के अंदर हो गई, यू नो अर्जेंसी। उसने देखा मैंने आके ये कर दिया, ये बहुत बेसिक सी बात है तो कुछ हो नहीं सकता। नाउ इस चीज को सबसे बड़ी चीज तो ये, ही और शी इज अनेबल टू ट्रांसलेट एनीथिंग दैट स्टार्ट्स द सी लेवल हैज टू बी वेरी केयरफुली evaluated, crafted, and most importantly, calibrated. So now let's get into this. Now, translation leak kya hota hai? Everyone hears the same words. Now, when you are in the room, you see fancy jargons. You heard fancy jargons. You see beautiful presentations, immaculate presentations. Somebody in a in a three-piece suit, a tie, and a pocket square, giving so precise that it looks like the end of the world. Still, people on the other side of the table are really lost that what have to be taken from this. It means this, or this means this. Everyone heard the same words and imagined different actions. Now, why? Because it's very poetic. खूबसूरत अल्फाज अंग्रेजी के अंदर डूबे हुए, सही है, जैसे मिर्जा गालिब जो है वो अंग्रेजी में शायरी कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन नीड्स वर्ड्स। आप बताते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, इससे क्या होगा, व्हाट डिजिटल एक्चुअली मीन्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे इदारों के अंदर डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन में ही जो है ना वो झगड़ा चल रहा है कि भाई ये हम डिजिटाइज कर रहे हैं या डिजिटलाइज कर रहे हैं। थैंक यू शकील फॉर ज्वाइनिंग। ओके, अच्छा, and most importantly, bring the right people and making them understand what's the real role in that journey would be, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप लोगों को बताते नहीं कि इस एक्शन में आपका रोल क्या है, आप किस तरह अटैच हैं, एचआर कैसे अटैच होगा, टेक्नोलॉजी कैसे अटैच होगा, ऑपरेशंस कैसे अटैच होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्रांसलेशन लीड्स डोंट क्रिएट फेलियर ओवरनाइट, सही है, वो मोमेंटम क्रिएट करते हैं विदाउट मीनिंग। वाई? आप लगे हैं, बस काम हो रहा है, टीम डिलीवर कर रही आ रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, आइट्रेशंस पे आइट्रेशंस आए जा रही हैं, क्यूए की टीम्स लगी हुई हैं, क्यूए की बिल्ड डिप्लॉय हो जा रही हैं, एंड आपके पुराने इशूज नए इशूज तो रिजॉल्व हो रहे हैं, बट पुराने इश्यूज ओपन हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। एक झगड़ा चल रहा है आपका और वेंडर का, या आपका डेवलपमेंट टीम का, एंड डेवलपमेंट टीम कहती है कि देयर इज नॉट
much time available for stability. You want me to get the build live as quick as possible. आपको अपनी बैंकिंग ऐप लेके जानी है, 10 लाख कस्टमर को माइग्रेट करना है, आसान काम नहीं है। 8 लोग हैं मेरे पास, मैं ऑपरेशंस भी देख रहा हूँ, कैसे काम करूंगा? They don't actually have the visibility कि उनको करना क्या है सही मानों में, आपको उनको बताया ही नहीं। दूसरी चीज क्या है? ओनरशिप लीग। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, हेलो, जी जी, कोई बात कर रहा था, कोई सवाल है? नहीं नहीं, सवाल नहीं है, वो मेरा गलती से माइक ऑन हो गया था। इट्स नो ओके, नो आप कंटिन्यू। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सेकेंड इज द ओनरशिप लीग। जब हम बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं ना, तो हम किसी का नाम नहीं लिखते हैं कि इस एक्टिविटी का, इस डिलिवरेबल का, इस आउटकम का, आउटपुट का एक्चुअल अकाउंटेबल पर्सन कौन है। जब तमाम के तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, अकाउंटेबल कोई नहीं होता। आप अक्सर देखा होगा, यू नो, इफ यू आर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट, वेदर इन एमएस प्रोजेक्ट और एक्सेल, वट फाइल जो भी आपने, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ना डिपार्टमेंट का नाम लिख देते हैं अक्सर। तो नाम असल बंदे का नहीं लिखते। नहीं नहीं नहीं, लिखना नहीं यार। वाई? बिकॉज डोंट वांट टू लुक बैड अगेन। पर्सनल रिपोर्ट। नाउ डिसीजन राइट्स जो है ना, वो क्लियर हो जाते हैं जब अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग अलग कमरों में बैठती है। जिसके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी उसकी, जो उसको पता ही नहीं होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी है, सो यू विल नेवर गेट द करेक्ट रिजल्ट। नाउ आपको पता होना चाहिए, मैंने एग्जांपल दिए यहाँ पे कि डेटा प्रोग्राम विद 4 कमिटीज बट 0 डेटा ओनर्स। इसका ओनर कौन? अकाउंटेबिलिटी डजंट स्केल विद हायरार्की। आप उसको बढ़ाते जाएं। बहुत फैंसी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसी भी क्लासिक एग्जांपल क्या है, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट को इतना कॉम्प्लेक्स कर देती है, तो डायरेक्टली फेल नहीं करते, वो बिल्ड करते हैं कमिटीज पे कमिटीज, हायरार्की पे हायरार्कीज। ऐसा फ्लो बनाएंगे आपका कि बंदा उसी में गुम हो जाएगा। जी, एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की एग्जांपल देखें, 10 साल उन्हें सिखाया जाता है कि आपने किसी काम को ना कैसे करना है, उसके बाद सही मानों में ट्रेनिंग शुरू होती है गवर्नमेंट ऑफिसर। तो व्हाट वी नीड टू डू, एंड अगेन व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी रिजिड अगेंस्ट। कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक गाइस? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझे बताएं, क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिएगा। तो 10 साल के बाद ना उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है गवर्नमेंट ऑफिसर की, कि आपसे मजीद काम कैसे करना है। 10 साल बताया जाता है कि काम को ना कैसे करना। ठीक है? तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो फ्लैट हायरार्कीज क्यों जो है वो रेजिस्ट करती हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एजाइल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि लोग, ओके, इस अनम्यूट में, इस म्यूट में मैं भी अनम्यूट हो गया था। खैर एनीवेज, सो वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि जब वो उनको फ्लैट हायरार्की बोला जाता है, तो वहां पे ना इंडिविजुअल्स एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना होता है? आप ओनरशिप लीग को बचाने के लिए, आप यू नीड टू टॉक टू पीपल, यू नीड टू गेट देम ऑन बोर्ड, एंड यू नीड टू मेक अ कनेक्शन विद देम। ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है, जो मैंने पहले भी बताया था। जब आप ये कहेंगे बहुत सारी लफाजी बातें होती हैं, नो इट्स नॉट। until unless you work on these, your smallest initiative will fail if you don't focus on all of those things. 25 years एक्सपीरियंस मेरा है। जब जब मैंने इन पे फोकस किया, बड़ी सी बड़ी चीज निकल गई। आसानी से नहीं निकली, निकल गई। और जब मैंने फोकस नहीं किया, तो छोटी सी छोटी चीज जिसको निकल जाना चाहिए था, उसने भी मुझे बहुत ट्रबल किया है ना, मैं बता नहीं सकता। नाउ तीसरी चीज, फीडबैक ली। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, जब मैंने कहा था कि आप बैठे हुए हैं और आपको आइडिया बताया कि हम ये करने जा रहे हैं, और आपको दिल में आएगा अरे भाई ये क्या करने जा रहे हैं, क्या वो चीज कभी आपने पेपर पे रखी है? हाँ, खामोश जरूर है, बाहर निकल के सपने बात
चाय कॉफी पीने के बाद जब हम लोग बाहर निकले, तो एवरीबडी डिस्कस दैट इट वॉन्ट वर्क, आर द नट्स, व्हाट देयर थिंकिंग। भाई हमसे ही पूछ लेते, ये कितने लोगों ने ये वाली बात नहीं पूछी हुई इस तरह की मीटिंग से निकल के, लेकिन वहां पे किसी ने फीडबैक नहीं दिया। अब तूने, हम क्यों बुरा बने, मैं क्यों नजरों में आऊं, वैसे भी बॉस जो है ना मुझसे खुश नहीं रहते और अप्रेजल आने वाला है। ये तमाम चीजें हमें रेस्ट्रिक्ट करती हैं फीडबैक ना देने की। इन ऑर्गेनाइजेशन जो फीडबैक पे नहीं चलती हैं, ट्रू फीडबैक पे, वो लोग हमेशा डाउनवर्ड हिल सफर कर रहे होते हैं। जितनी ऑर्गेनाइजेशंस जो बन गई हैं, जो बंद हो गई हैं, आप इंटरनेशनल ले लें या लोकल ले लें, आ, एक जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, नाम है उसका फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो एयरलिफ्ट, they were bleeding money like anything. The head, the CEO was my friend, extremely sharif आदमी, super sharif आदमी, फीडबैक नहीं दिया। जो नीचे वाले थे ऊपर वालों का फीडबैक नहीं देते, ऊपर वाले मजीद ऊपर वालों का फीडबैक नहीं देते। They were bleeding money like anything. And what happened? It was one of the most promising uh, startups of the country, and it failed like anything. People lose job just because for 1 year nobody gave a feedback. Yeah, we are doing incorrect. So when truth travels slower than reports, डैशबोर्ड्स आपके ग्रीन होते हैं, डिलीवरी आपकी रेड होती है। इट्स लाइक हैविंग अ वाटरमेलन, बाहर से ग्रीन है अंदर से रेड है, आप सब अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, बिकॉज मैंने बुरा नहीं बनना भाई, मैंने बुरा नहीं बनना। जब फीडबैक लेट हो जाता है तो फेलियर प्रोग्रेस की तरह लगता है, आप फायर फाइटिंग को अचीवमेंट दिखा रहे हो। Now, make sure feedback doesn't have to be a six-page report. It can be a very small sentence. It can be something with a corrective action. It doesn't have to be a blame game. It doesn't have to point fingers always. It has to be say, we are doing this and I can help us to correct it. जब आप अपना पार्ट प्ले करेंगे तो लोग आप पे थोड़ा बहुत एतमाद करना शुरू करें। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम ये गलत कर रहे हैं, आप तो ये कर ही नहीं रहे, आप तो ये कर ही नहीं रहे। अब ये पर्सनल हो गया, मैं घर से तो नहीं लेके आता ना भाई, मैं ऑर्गेनाइजेशन छत नीचे काम कर रहा हूँ। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ वी टैकल फेलियर विद द फीडबैक। सो बिलीव, अकाउंटेबिलिटी, फीडबैक, you close these, you avoid these, transformation doesn't, just execute it, right? It accelerates. मोमेंटम जो है ना वो स्पीड से बिल्ड नहीं होता, वो सस्टेन किया जाता है बिलीफ से। अगर आपका बिलीफ है, आपकी क्लैरिटी है, आपको पता है मुझे कहाँ जाना है, एंड पिक्चर कैसी लगेगी, आउटकम कौन कौन से होंगे, उन आउटकम का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, अकाउंटेबल पर्सन कौन होगा, बिलीव मी, कितने कम रिसोर्सेज हो आप, यूं करके आप काम करें। अच्छा, अब जो क्लासिक ड्रिफ्ट आती है ना, वो आती है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। सबसे पहले इंटेंट सबकी सही होती है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन सब अलग अलग तरीके से गलत कर रहे हैं, अपने लिहाज से, अपनी नॉलेज के लिहाज से, सर्कमस्टांसेस के लिहाज से, एक्सपीरियंसेस के लिहाज से। जब इंटरप्रिटेशन गलत होती है तो एग्जीक्यूशन की फॉर्मेट अलग अलग होता है। सही है, क्योंकि उसमें आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं क्लियर की जाती ना, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है या मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे। इंटेंट तो पता है कि जी हमने कंपनी का ये काम करना है, एसएपी का सॉफ्टवेयर लगाना है, चेंज मैनेजमेंट करनी है, नया सैलरी का जो डिसबर्समेंट का सॉफ्टवेयर, एचआर सॉफ्टवेयर लगाना है। क्यों लगाना है, नोबडी नोस, राइट? इंटरप्रेट की अलग तरीके से, एग्जीक्यूट की अलग तरीके से, रिपोर्ट की अलग तरीके से। अब जो डिस्टॉर्शंस क्रिएट हुई ना, वो ये छोटा 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 करके ना इतना बड़ा एक आपका ना, इट बिकम्स so it becomes a rocket. Every layer adds its own spin until it becomes unrecognizable. Now, the smart people is
उनको पता चल जाता है कि जी हम गलत कर रहे होते हैं, बट ये देखिए कीप एडिंग स्पेन, भाई मैं क्यों करूं, मैं क्यों बताऊं, सब लोग लगे रहे तो बॉस को आके वो, लेकिन जाके ना कुछ भर भी रहे होते हैं। By the time results reach leadership, reality has been PowerPointed. Now why? Because we are we are accustomed to making look so much good that we polish everything. We polish our failures as well as success. For example, you launch something, and for you the end goal is what? Launch. Okay. Because it was projected like this, कि launch is a big thing. Conversion to operations, user adoption, results, financial values, conversions over the period of time, sunset, the minimum amount of time the legacy system going to set sunsetted. These are the things nobody discussed that. ये हम वक्त के साथ साथ देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या था, नए सिस्टम का लॉन्च, आपका यूजर कितनी जल्दी उससे जो है ना वो अलाइन होके उसको एक्सपर्टली यूज कर सकता है, और आपकी जो यूजेज कॉस्ट है और वो कम होके ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ये हम बाद में दिखाएंगे, क्योंकि हमें जब खुद आइडिया होगा तो हम उसको अचीवमेंट के तौर पर दिखाएंगे। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट पावर पॉइंट मेंटेलिटी, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। The biggest thing that I have that hampered scalable projects and programs, uh, the human side, the neglection of the human side. So it's one of the biggest gap. It's never the process that fails first. It's the people between the slides. Why? Because we are talking about new methods, new behaviors, and nobody ever discussed that how new behavior will look like on people who will be using the new system, new process. उस गरीब को तो पता भी नहीं है कि मुझे करना क्या क्या होगा, जब आप उस पर लाके थोप देते हैं। And he falters because he doesn't have that uh, knowledge exist in him or in her. So they need training, they need support, they need motivation, they need guidance, they need backup. So the illusion of agreement, silence isn't alignment, it's withdrawal. अगर वो खामोश है आपकी बात पे और कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। देन वी गेट लॉट ऑफ ईमेल्स, इसमें ये मसला है, इसमें वो मसला है, चल नहीं रहा, फलाना ढिमाका, पीपल डोंट लॉग इन फॉर वीक्स। सो ह्यूमन साइड नीड टू बी catered वेरी वेल। दूसरी जो चीज होती है, कंफर्ट ऑफ बिलीफ। तमाम लीडर्स वो सुनना पसंद करते हैं जो उनकी स्टोरी को फिट करता है। मैं वो रिपोर्ट करूंगा जो मेरा बॉस सुनना चाहेगा, उसके दरमियान गैप को मैं पावर पॉइंट कर दूंगा, दिखा दूंगा इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। इट्स नॉट, इट्स समथिंग दैट्स किकिंग माई बट एवरी सिंगल डे, और माई टीम्स, वी आर डाउन विद numbers, but I'm going to show it that it is work in progress. It is the mistake of the user. Am I facilitating them properly? Did we had that in the first place in our plan? No. But I really want to look good. I really want to look back. I don't want to accept my mistake कि यार ये मेरी वजह से हुआ है, ये हमारी वजह से हुआ है, हम क्लियर नहीं थे, हमने उस वक्त कहा नहीं था कि it's not going to work in 3 weeks time, 3 months time. दूसरी चीज डेलीगेशन डिल्यूजन जो होता है, ओनरशिप डेलीगेट कर दी जाती है, कंट्रोल नहीं किया था। There is a very famous sentence I heard from a boss in one part of my career. यार तुम मेरी उंगलियां हो, बस तुम चले जाओ, सोचना तुम्हारा काम नहीं। So he transferred the work to me, डेलीगेट कर दिया, लेकिन बोला कि ये तुम काम वो करोगे जो मैं बोलूंगा, तो अपने दिमाग इस्तेमाल नहीं कर। जब ऐसी बात होती है, even the competent people, most competent people fail. So if you are delegating, delegate with honor. Right?
एग्जीक्यूशन 20% प्लानिंग होती है, 80% साइकोलॉजी होती है। आप किस तरह लोगों से काम लेंगे, मैं दोबारा मेरी बात को देखिए, आप लोगों से किस तरह काम लेंगे, नॉट ले रहे हैं, एंड यू एडजस्ट। अच्छा, एक सवाल था मेरे पास आया था, आई फॉरगॉट दैट, डू यू थिंक इट्स अ मैनेजमेंट फेलियर दैट पीपल आर नॉट गिविंग फीडबैक, मे बी एम्प्लॉयज डू हैव द साइकोलॉजिकल सेफ्टी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड टाइम? यस, इट इज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू डोंट हैव द साइकोलॉजिकल सेफ्टी, आपको शॉट डाउन कर दिया जाएगा, रेपुटेशन बैड हो जाएगी, या आपका बॉस आपको निकाल के कमरे लगे गालियां देगा। आप कभी भी उस चीज को जो है ना ओपनली बहुत डरते हैं कहते हैं। इट इज, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज अ लीडर, हम तमाम लोग लीडर हैं ना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक टू कम अप विद अ बेटर वे of tackling a situation. Feedback can be wrapped as a question, not as a defensive or a aggressive question, a very logical question, something that you can that can be read between the lines, not making people uncomfortable instantly, or sending once it is being circulated, जो आपकी मिनट्स होते हैं तमाम, उस आप उसमें तमाम लोगों को रख के कि यू वर गोइंग थ्रू एंड थॉट कम्स टू योर माइंड एंड दिस इज नाउ इट इज अ वेरी, आप उसको सटल वे के अंदर स्लाइड कर दें ताकि लोगों तक पहुंच जाए। देखें, मैं अगेन एक बात ये कहना चाहूंगा कि लीडरशिप चेंज हो गई है। अब कमांड एंड कंट्रोल से निकल के आप कितना स्मार्टली इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से लेके चलेंगे, उतना आपकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी का जो सर्कल है ना, इतना स्ट्रांग हो। हर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वो आपको कहते जरूर है मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल सेफ्टी, बट दे डोंट प्रोवाइड दैट। इट इज अप टू अस हाउ थिन और थिक दैट सर्कल कैन बी। इट इज अप टू अस। आई वर्क विद द, you have no idea, the most aggressive individuals who blurt out bad words like anything. आप उनकी बातें सुने तो वो आपकी कॉन्फिडेंस को जीरो करने के लिए वो, but still I learned to remain in that room and stand on my point. And it doesn't took me 2 minutes, 3 minutes. It took me a while before how I learned and not get shattered. So आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम है, और आपको फीडबैक देने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फीडबैक को रैप करना सीखें अच्छे रैपिंग के अंदर। जब हम लोगों का मसला ये कि बहुत सारे इदारों के अंदर या घरानों के अंदर हमें वो अपब्रिंगिंग का पार्ट नहीं होती है, एंड वी ऑल आर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम सॉरी अगर किसी को डिसएग्री करना चाहे कर ले, फीडबैक बहुत ओपन और ब्लंट तरीके से नहीं दिया था। इफ यू आर विद योर मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, और आपने कोई बहुत ही खुली बात कर दी फीडबैक के तौर पे, वो भी ऑफेंड हो जाते हैं भाई, हो जाते हैं ना। तो ऑफिस वाले तो हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। If it depends on the connection you have with the individual, still how strong the connection is, you have to make sure you stay in the line and put it smartly so that other person can think, not resist. So हम इस पे आप मुझसे वन ऑन वन बाद में बात कर सकते हैं। I can always help you with this. So अच्छा, मोमेंटम मैप की हमने बात की, और हम इसके साथ बहुत कंप्लीट सेक्शन है जब हम वर्कशॉप में बात करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। There are 4 zones. One is clarity, what winning look like, आपको क्या करना है, एंड रिजल्ट क्या है, कन्वर्जन, आपने जो गोल्स हैं उनको 90 डेज के एक्शन प्लान के अंदर कन्वर्ट करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन एक्शंस को बिहेवियर्स में कन्वर्ट करें जो मैं करवाता भी हूँ लोगों के, लोगों की बिहेवियर्स कैसे चेंज होंगे। केडेंस का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिव्यू फास्ट, लर्न फास्टर। Doesn't mean you always need to have stand-up meetings or fancy ceremonies. How to simplify those to review process fast, या ऐसा भी नहीं है कि मंडे मॉर्निंग को तमाम लोगों को, पूरे डिपार्टमेंट को अपने कमरे में बुला लिया, 2 घंटे बिठा के उनका भी वक्त जाया किया, हम चिल्ली भी की, और एट द एंड ऑफ डे अगली दफा कोई खास फायदा नहीं था। एंड देन फाइनली कन्विक्शन, यू कीप द बिलीफ अलाइव अंडर प्रेशर। याद रखिएगा, क्रैक्स जब आते हैं जब आप के पास टाइम कम होता है, काम ज्यादा होता है, लोग कम होते हैं, काम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तजुर्बा नहीं होता, और आपके पास डेडलाइन चेस कर रहे होते हैं क्योंकि आपने आपके पीछे आपका बोर्ड चेस कर रहा होता है।
ये तमाम वो चीजें हैं. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ द पीपल आर इनटू द बोर्ड, अप टू द बोर्ड लेवल, बट देयर सर्टेन टाइम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स दैट क्रिएट्स हेरोइक फॉर यू. आपकी रातों में नींद अलग अलग तरीके से उड़ाते हैं. तो इस कन्विक्शन को, यू नीड टू कीप दैट बिलीफ अलाइव दैट वी कैन डू दिस. देयर इज ऑलवेज अ वर्क अराउंड, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट. देयर इज ऑलवेज अ प्राइस दैट यू पे फॉर अ सर्टेन एक्शन और सर्टेन डिसीजन. एक बहुत फॉर्मूला सबको पता है कि मोमेंटम आता है आपका राइट डायरेक्शन में, आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ने से. अगर आपका डायरेक्शन गलत है, आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे. आप कंसिस्टेंट हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में हैं, आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे. आप का डायरेक्शन सही है लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी सही नहीं है. आप कभी बिट्स एंड पीसेस में काम करते हैं, रिव्यू प्रोसेस फॉल्टेड है, तो आप लोगों को सही तौर पर एडजस्ट नहीं कर पाए. तो या जो आपकी वेलोसिटी क्रिएट नहीं हो रही एजाइल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, एजाइल टीम्स में बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है, सो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी. एक चीज और होती है, वो लीडरशिप लीड होती है. And I'll talk about very much in detail when some of you or any of you will attend the workshop. Say it's leadership league. Execution collapses at the top, not at the bottom. Why? Uh, we don't give information, true information or right information, and we guard the information like treasure maps. आपकी कोई प्रेजेंटेशन होने वाली है, वो इस तरह छुपा छुपा के रखी जा रही है. आप फर्स्ट टाइम आपको पता चला, अच्छा ये स्लाइड के इसके अंदर जो बनाने वाला है वो आपको फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, बल्कि वो आपको आके बता रहा है कि यार मेरे लैपटॉप पे आके देख लो, बिकॉज टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. व्हाट, व्हाई इट इज सो सेंसिटिव? प्रोजेक्ट टीम का पार्ट है, आपको नहीं पता, कल को आपसे कोई बात पूछी जाएगी तो आप उस बंदे की शक्ल देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, आपको नहीं पता. Cosmetic communication, you make sure it is so fabricated because you want to seen as confidence, so do you hide the truth. जी जनाब. uh, okay. uh, detached sponsors, because जो sponsors होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. uh, or then most importantly, they're only there to overlook the red flags. If it is that the case, if they're giving you the power or authority to overrule the red flag, then the whole project or the whole transformation effort is a red flag. स्लाइड डेक्स को अगर आप ट्रेजर मैप की तरह डील करेंगे, और यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर वे. याद रखिएगा इस चीज को. The five fixes that I think it can help. You need to have ruthless clarity. Uh, you you uh, you need to kill vague goals. आपके पास 25 लंबी लिस्ट नहीं होनी चाहिए कि ये करेंगे. 4 चीजें 8 चीजें उसमें पता ही नहीं है. अगर आप 4 चीजें भी कर रहे हैं, आप एब्सोल्युटली क्लियर हैं, इट विल टेक यू वेयर यू वांट टू गो. फ्यूअर प्रायोरिटीज, डीप ओनरशिप. आपकी प्रायोरिटीज बहुत कम होनी चाहिए, जो टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए, और आपकी उनकी ओनरशिप बहुत क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए. वीकली लूप्स आप डिफाइन करें, लर्निंग लूप्स का, कि हमने क्या सीखा और क्या सीखेंगे, क्या चीजें सीखना जरूरी है हमें नए बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए. ट्रांसपेरेंसी, रेडिकल ट्रांसपेरेंसी. इफ यू कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट among yourselves, uh, so there's no sugarcoating, please. uh, अच्छा लगने के लिए ना आप झूठ नहीं बोलते. There is always ways to overcome the problem or the the mistake we have created or we have mistake we have done. देखिए, अगर आपने अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना है ना, अपनी गलती एक्सेप्ट कर. अगर आप गलत बयानी करेंगे, हम गलत बयानी करेंगे, वो पकड़ी जाती है ज्यादा. जो है ना, वो रेपुटेशनल लॉस है. एंड व्हेन यू कम अप विद you're accepting your mistake, that this was something that we overlooked, this something we ignored, and this happened, and now we have controlled it and not take it as a lesson and not doing it again. It will give you more confidence and a kick to your responsibility. यार बंदा झूठ नहीं बोल सकता. अच्छा,
बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं कि यार ये बड़ा मसला होता है क्योंकि इदारों में ये चीज़ें जो हैं वो चैलेंजेस होती हैं। और ये फिर बाद में हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। तो अगेन यू डोंट से ओपनली, जैसे मैंने बताया था कि आप इसको अच्छी तरह से कह सकते हैं कि वी लर्न इट बाय थ्रू थ्रू एक्सपीरियंस। हमें शुरू में पता नहीं था, बट एज वी मूव फॉरवर्ड वी कैन ऑलवेज वी ऑलवेज लर्न दैट एंड देन नाउ वी हैव पार्ट built it into our process. Leadership integrity, you need to model accountability. अगर आप अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझेंगे तो आपके नीचे वाले भी नहीं समझेंगे। सो अगर आपकी टीम या आपकी प्रोजेक्ट टीम है, आपकी प्रोग्राम टीम है जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट कर रही है, सो इट मीन्स इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर टीम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू कैन नॉट जस्ट टेक इंडिविजुअल इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट से यार इनकी वजह से हुआ है। तो लीड तो आप कर रहे थे ना भाई। तो स्पीड विदाउट ट्रुथ इज chaos in disguise, याद रखिएगा। वी ऑल नो दैट, वी ऑल एक्सपीरियंस दैट। सो फ्रॉम वेलोसिटी टू बिलीफ की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके पास बिलीफ नहीं है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, सो यूर व्हाट यू डूइंग इज chaos विद ब्रांडिंग। मैंने पहले भी कहा था फास्टर प्रोजेक्ट्स एंड अप इन सर्कल्स, नेवर इन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि आप बार बार घूम के वहीं आ रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट में आते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में आते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में आते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है, बर्नआउट होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डीमोटिवेशन होती है, लोग जाना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो वही है। क्लैरिटी का नाम हमें, चाहे वो मैनेजमेंट साइड से हो, जो आपके साइड से हो, एजाइल टीम्स क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं? बिल्ड आफ्टर बिल्ड, बिल्ड आफ्टर बिल्ड, बिल्ड आफ्टर बिल्ड, एंड देयर अप्रोचिंग नोवेयर। अगेन उसी के अंदर एक नया फीचर आ गया, उसी स्क्रीन से बाहर निकल पा रहे हैं। ज्यादा करने की ख्वाहिश में आप मुस्तकिल सर्कल में रहते हैं, तो you're doing very bad for your own self and very bad for your team as well. Demotivation, dejection ज्यादा बुरा होता है बहस बहस के कि आप कम करें और आगे बढ़ जाए। So belief is very much important, clarity is very much important. मैंने from chaos to clarity का जो वर्ड है उसकी वजह ये है कि if I need everything, I'm gonna be occupied with everything. If I need less, I have the clarity, I have the belief that I can find a way to get it done. I will get it done. So execution mindset क्या होता है जी? Deliver impact, not updates. Promises जो आती है ना, वो आप खाली impact ना दें, बल्कि हाँ impact का दें, बल्कि खाली updates ना दें। तो आप from plans you form pulse, feedback and then forecast. गवर्नेंस जो होता है वो गाइडेंस होता है, रिमूव फ्रिक्शन होता है, नॉट असाइन ब्लेम। याद रखिएगा हर डिपार्टमेंट का गवर्नेंस फंक्शन का काम यह होता है कि वो स्ट्रैटेजी को अलाइन करता है विद रूल्स, बट टू रिमूव फ्रिक्शन, नॉट टू क्रिएट फ्रिक्शन। सही है? देन फ्रॉम स्पीड, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड अर्जेंसी। Now, most importantly, we start with urgency. So now speed has to become first stable, then consistent, then urgent. And finally, from control to connection, because trust is the new PM. If you create that connection among your stakeholders, up, middle, down, यकीन करें आपको उनको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिपोर्ट आपकी ईमेल इनबॉक्स के अंदर। इट्स अ माइंडसेट, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस इज अ माइंडसेट। So my closing reflection is, you don't fix execution by tightening control. आप पाना लेके स्क्रू टाइट नहीं करता था। You fix it with deepening connections. Start investing on your activities for creating better connection. Sorry, छोटे का बुखार सही हो गया? please mic off कर दीजिएगा. We are towards the end slide. So you don't scale with process, just you scale with belief. Now याद रखें, जब आप किसी बंदे के पास जाएंगे, नए बंदे के पास उससे बात करेंगे और उसको डायरेक्टली प्रोसेस समझाना शुरू कर देंगे, तो वो आपकी बात सुन तो लेगा शायद, बट इग्नोर कर देगा। बट जब आप किसी के पास जाएंगे, उससे अपना बिलीफ बताएंगे कि यार ये जो चीज़ है, ये इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे आपको क्या फायदा होगा, और आपको मैं कैसे हेल्प करने आया हूं। जब आप उससे इस तरीके से बात करेंगे तो आई गेस वो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, ज्यादा आप पे ट्रस्ट करेगा और आपसे ज्यादा बात करेगा, कुछ भी हो। बेस्ट स्ट्रेटजी इज द वन दैट सर्वाइव्स कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। दो स्ट्रेटजी हम बनाए,
वो पेपर पे फुल प्रूफ ना हो, बल्कि रियलिटी के साथ अलाइंड हो, कि हमें पता हो कि यार ये रियलिस्टिक है और ये एप्लीकेबल है। बहुत सारी चीजें पेपर पे बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो इंस्टेंट फेलियर होती है द मोमेंट इट हिट्स एग्जीक्यूशन, राइट? So this is it from my side. Now I'm open to questions. You can ask me anything if you want to. I tried my best to be very simplified, very simple, and explain everything with lot of examples. Uh, Floor is all yours. हेलो। से एक काम करते हैं, सब लोग पहले अपने 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 कैमरास ऑन कर लें प्लीज, तमाम लोग। कैन वी डू दैट? हाँ, थैंक यू Yes, sir. डॉक्टर। Assalamualaikum, sir. I'm Mehnaz. Can I ask वालेकुम a सलाम। question? Yeah, sure. Please go ahead. Sir, in fact, I am going to lead a team. Like I'm teacher and I'm also supervising my department. I'm computer science teacher. So Okay. your all the points are really very valid, sir. So how can we manage if some of the team member doesn't want to do a task or they have some kind of resistance to execute a task and they think they are more competent than the person to whom the leader is going to assign a task. Like I am having two or three teachers and I'm going to assign a task to teacher A, but B is saying I'm more competent. I can do this task well. So what should I do at that point? तो देखें, कभी भी ना इंसान, जो लोग किसी काम को नहीं करना चाहते उसके तीन वजह हो। एक, दे आर नॉट द राइट पीपल। नंबर दो, दे डोंट नो हाउ टू डू इट। नंबर थ्री, दे डोंट सी एनी वैल्यू डूइंग इट। सो यू नीड टू फाइंड आउट इफ ही और शी इज सेइंग दैट दे आर मोर कॉम्पिटेंट टू डू अ सर्टेन टास्क। आप उनसे पूछें किस तरीके से, उनकी अप्रोच पूछें, दूसरे से उसकी अप्रोच पूछें, जिसकी अप्रोच बेहतर लगे आपको आप उससे करें। अगर उनको वैल्यू और आपको लगता है कि नहीं, टीचर ए को टास्क ए ही करनी चाहिए, तो आप उनको उनकी वैल्यू एक्सप्लेन करें और आप फिर देखें क्या उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल है उसको करने के लिए। अगर उनके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, तो आइदर यू नीड टू प्रोवाइड दैट और यू डेलीगेट दैट टास्क टू समबडी एल्स। बिफोर इट बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रेजिस्टेंस की कोई ना कोई रीजन होती है। उस रीजन को समझना होता है और आपको एक्सप्लेन करना होता है। और जितना जल्दी आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकेंगे, उतना ही वो चीजें आपकी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए स्मूथ रहेगा। सो वन, जो उनका स्टैंस है कि वो ये काम नहीं फलाना काम बेहतर कर सकते हैं, उसकी रीजन मालूम कीजिए। नंबर टू, उसकी वैल्यू उनको बताइए कि किस तरह से वो वैल्यूएबल है टीम के लिए और क्यों वो आप ये टास्क असाइन करने जा रही हैं, आपका रैशनल क्या है। आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप लीड हैं और उन्होंने आपको मना कर दिया, लेकिन आप ये जरूर बताइए कि वाई यू वांट टू एक्सप्लेन दैट। नंबर थ्री, क्या ही और शी इज अफ्रेड ऑफ डूइंग द जॉब बिकॉज दे डोंट हैव द नेसेसरी स्किल? इफ दैट इज द केस, प्रोवाइड दैट स्किल। Yes, sir. Thank you so much. And other point is this, sir, being an employee. If you feel for a longer time you are not being listened and you are not like, now the case is opposite. Now the employee is try to make them understand that I can do this task, but for a longer time, the chance is not being given. So in this scenario, of most of the time, it is happening that we may switch our job when someone is not going to listen us. So what is the best way to tackle such kind of conditions, sir? लेकिन जब मैं किसी को कहता था, अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैनेजमेंट मेरी बात पे काम नहीं करती थी, तो मैं वो काम कर देता था। सही है, और उनको रिजल्ट लेके आता था उनके लिए। ठीक है, हर इंसान का, लेकिन वो मेरा सिनेरियो अलग था, मेरा इन्वायरमेंट अलग था। I don't know about your environment. You can always have a detailed discussion with me. You can get my credentials from the moderator, and then we can talk about it so I can help you out. लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो स्टिक करना चाहती हैं किसी खास रोल के अंदर, या आपको लगता है आप ग्रो करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ डिस्कनेक्ट होता है।
उसको बैठ के भी हल किया जा सकता है, बात करके भी अपने सुपरवाइजर के साथ, लाइन मैनेजर के साथ। दूसरा तरीका क्या होता है कि यू हैड सम एविडेंस और रिजल्ट्स इन योर हैंड दैट यू आर केपेबल इनफ टू डिलीवर। वंस यू हैव दैट एविडेंस और हैव दैट रिजल्ट विद यू, इट इज वेरी इजी टू बार्गेन रादर देन आप खाली बातों से बार्गेन करें। Thank you जी so much, जनाब, किसी sir. और के पास कोई सवाल है? वी हैव गॉट टू जी मोर अस्सलाम मिनट्स। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम साकिब ज़फ़र है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है वो बेसिकली होता यह है कि आपको पता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए या प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि टाइमलाइन मीट करें, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम स्केजुअल करते हैं कोई भी टास्क, ठीक है ना, कोई भी प्रोजेक्ट हम स्केजुअल करते हैं और उसकी जो टाइम लाइन है वो हम हर तरफ जितने भी स्टेक होल्डर हैं, दो यानी कि फॉर एग्जांपल कस्टमर एंड से भी जो स्टेक होल्डर हैं और जो इंटरनल स्टेक होल्डर हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं। चले इंटरनली तो हाँ, उस टाइम लाइन को प्रेशराइज करके जो है हम कोशिश करते हैं मीट कर लेने की, ठीक है ना। और वो 80% और 90% केसेस में वो मीट भी हो जाती है। लेकिन कस्टमर एंड की तरफ से अगर कोई ब्लॉकेज आती है या कोई हर्डल आता है तो उस पे आप प्रेशराइज नहीं कर पाते ड्यू टू मैनी रीजंस। नंबर वन रीज़न यही होता है कि कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। तो अगर आप उनको पुश करते हैं या उनको जो है उनको एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या है कि वो बुरा मानते हैं, ठीक है ना। और उसकी वजह से होता क्या है कि वो टाइमलाइन जो है वो हिट होती है और वो ब्रीच हो जाती है। तो इससे नंबर वन इम्पैक्ट तो एक ये आता है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप जो है टाइमलाइन मीट नहीं कर पा रहे हैं जो आपने फोरकास्ट किया है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का जो फोरकास्ट किया था वो एयर के सेकंड क्वार्टर में किया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो थर्ड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर में जाके हो रहा है। उसकी वजह से जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो भी हिट हो रहे होते हैं, वो भी आप मीट नहीं कर पा रहे होते। फिर आपकी अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ ईयर आपकी जो है वो केपीआई जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन मैं अगर बुकिश लैंग्वेज में कहूँ तो उसमें बहुत सारे हो सकते हैं कि आप फिर जो है ना उस टाइमलाइन को जो है रीस्केड्यूल करें या कस्टमर के साथ बैठ करके एक डिस्कशन करें और उस जो जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन इट इज़ नॉट वर्किंग लाइक दैट, सही है ना। तो इसके पीछे आप इसका क्या आंसर हो सकता है या इस पे आप कैसे इस चीज़ को हम टैकल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी गुड क्वेश्चन। काफी आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया। मैं आपसे ये वाली बात बोलूंगा कि बुकिश चीज कोई नहीं होती, आप थ्योरी को या प्रैक्टिस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया ना, अपने अपने लोगों के साथ जो होते हैं 80-90%, हम तमाम के तमाम लोग ना टाइमलाइन या डिलीवरी को मार्क करते हैं अचीवमेंट से, वैल्यू को मार्क नहीं करते कि उस डिलीवरी के अंदर वैल्यू क्या जा रही है कस्टमर के पास। कितने केसेस जा रहे हैं, कितनी स्टोरीज जा रही हैं, कितनी हद तक स्टोरी जो है वेल कुक्ड है, कितनी हाफ कुक्ड है, उस पर ही प्रेशर है तो वो निकाल देगा ना आपको। फिर बोलेगा ठीक है कस्टमर रिपोर्ट करेगा तो मैं देखूंगा उस वक्त इशू मैनेजमेंट में देख लूंगा। बात दफा ऐसा भी होता है, मैंने काम किया हुआ है, मुझे पता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो अगर रिसोर्स ओवर बुक्ड है तो वो हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उसने जो टाइमलाइन दी है वो रियलिस्टिक है या नहीं। तो अगर आप अनरियलिस्टिक टाइमलाइन को डंडा लेके कंप्लीट करा रहे होंगे तो ये आपके एंड से भी सही नहीं है। तो अगेन आप और दूसरी बात है, ट्रांसपेरेंसी हमेशा मेंटेन रखें अपनी मैनेजमेंट के साथ। देखिए जिन इदारों के अंदर डिलीवरी हुक्ड अप होती है फाइनेंशियल नंबर के साथ, वहाँ ये प्रॉब्लम आता है। तमाम इदारे मैंने बोला अच्छा बनने के लिए हम भी बहुत टाइट टाइमलाइंस देते हैं, तो अपने अंदर बफर्स इतने रखें। शायद वो आपको पता, मैं वो शायद आपके डिलीवरी गाय को ना पता हो, लेकिन आपकी मैनेजमेंट को पता होगा कि फर्स्ट बफर लाइन क्या है, सेकंड बफर लाइन क्या है, ताकि आप जो है अपने केपीआईज को मैनेज कर सकें पूरे साल के लिहाज से। देखिए 6 महीने गुजारने के बाद हर किसी को पता चल जाता है कि जी मेरी वेलोसिटी क्या है या डिलीवरी मैकेनिज्म किस तरह वर्क करता है। सो ऑब्वियसली उसको अगर मैं इग्नोर करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और नहीं वो गलत नहीं, जो डिलीवरी वाला पर्सन है उसको उस पर तो लोड है ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चूज तो नहीं सकता उसको। नंबर टू देखिए, कस्टमर को ना इनलाइन चेक पेरहर रखना होता है। उसकी रीजन क्या है कि कस्टमर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो टाइमलाइन कमिट करते हैं आपसे, और अगर वो अपने अपने डिले को भी आप पे ट्रांसफर करते हैं और फिर आपको आपकी टाइमलाइन स्क्वीज कराने की कोशिश करते हैं। ये बहुत एक क्लासिकल टैक्टिक होती है।
तो अगर आप एक्सपेक्टेशन को शुरू में क्लियर रखेंगे और बताएंगे जी कि अगर आप इतनी टाइमलाइन आपकी अगर डिले होगी तो उतनी टाइमलाइन हम भी एक्सटेंड कर देंगे, लिखत में ले आएंगे ये वाली चीज को, क्योंकि बाद जगह आप उन्हें फेवर्स भी दे रहे होते हैं, ठीक है, दे रहे होते हैं ना फेवर्स उनको कि यार ये आउट ऑफ स्कोप चीज है और छोटी सी चीज है, करा जी दो, जी अभी बिल्कुल। मैं जी टीएनएम जी का फॉर्म बिल्कुल। भरूंगा और तो इसमें टाइम लगेगा, तुम करा दो, बाद में देख लेंगे, या जी जी टीएनएम के बिल्कुल। थ्रू हैंडल कर लेंगे, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। सो जी आपको जी। उसको चेक रखना होता है कि कस्टमर की स्मार्टनेस में मैनेज करना प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। आप हम देखें, अगेन में कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल स्टेटमेंट, वी डोंट वांट टू लुक बैक इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स। मैं उसके सामने भी अच्छा रहना पसंद करूंगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मैनेजमेंट में अच्छा रहना पसंद करूंगा, बट कहीं ना कहीं मुझे बुरा बनना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो उसके लिए जरूरी है कि मुझे टैक्टिक पता होनी चाहिए और मुझे कम्युनिकेशन बहुत क्लियर करनी है, एक्सपेक्टेशन क्लियर करने के लिए, चाहे वो मेरा बॉस हो, चाहे मेरे कस्टमर हो। मेरे कस्टमर डिले करेगा, डिलीवरी डिले होगी, सिंपल। मेरा एक साइकिल है, यू कैन नॉट ब्रीच दैट साइकिल, राइट? इफ इट टेक्स 3 वीक्स, इट विल टेक 3 वीक्स। वो 15 दिन अगर उस मेरे खा जाएगा ना, 15 दिन के अंदर उसको इसको स्प्रिंट नहीं दे सकता, सिंपल सी बात है ना जी। आपने काफी हद तक इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में ना बहुत सारी चीजें जो है ना वेरी कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं ना 15 दिन आपने डिले किया है कस्टमर एंड से, तो आप 15 दिन प्रोजेक्ट की टाइमलाइन एक्सटेंड कर दें। नहीं, आप मैं यही कह 15 रहे दिन हैं? नहीं कह रहा, हाँ मैं कह हाँ। रहा हूँ कि आप उसको मतलब अपनी टाइमलाइन में से मैक्सिमम टाइम रिलीफ नहीं दे सकते, तो आपको भी कुछ हद तक अपने आप को मैनेज करना होगा। देखिए, एवरीथिंग हैज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिpercussion टू एवरीथिंग। दिस इज व्हाट रिस्क इज ऑल अबाउट। इफ वी देखें। आर अनेबल टू इफ वी आर अनेबल टू बैलेंस दैट रिस्क आउट, तो हमें कहीं ना कहीं उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि 5 दिन का डिले वहां है तो 5 दिन मैं भी कर लूंगा, हाँ मैं 2 दिन लूंगा, ठीक है ठीक है जेन्युइनली। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Okay, guys, so I think we will be wrapping up, but we have some questions left in chat as well. So, Ehsan is asking, what is the best method to encourage innovation in projects, especially in cultures where existing processes and procedures are considered absolute and perfect? So, Ehsan has a उसका question in तरीका chat. उसका तरीकाकार ये है कि अच्छा, राइप को भी मैं देख रहा हूँ, उन्होंने भी शायद हाथ रेस किया था, बट मैं इनोवेशन का तरीकाकार ये है कि जी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लर्निंग ड्राइव स्टार्ट करें और अपने लोगों को बताएं कि आप नए काम को बेहतर तौर पे, पुराने काम को नए के बेहतर तौर पे कैसे कर रहे हैं। इनोवेशन आती है जब लोग एक्सपीरियंस करते हैं नई चीज़ों को या नए मेथड्स को, नए प्रोसेसेस को जो एफिशिएंट होते हैं और उनके वर्कलोड को कम करते हैं। बातों से नहीं होता। अगर आप और उस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को, अगर आपके यहाँ वो कल्चर नहीं है तो मे बी यू नीड टू कम ऑन अ सैटरडे, यू नीड टू स्पेंड वन आवर एडिशनल ऑन वीकडेज, spend that time, bring 4 5 people in, brainstorm and then do that, and then show your findings maybe in a monthly meeting or in a quarterly meeting, company's quarterly meeting, what you have been up to and what you have achieved। लोगों को, और फिर लोगों को से बीटा टेस्टिंग कराएं। इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम मैं आगा खान के अंदर था और एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, हम क्या करते थे, हम कॉफी मॉर्निंग करते थे, हम लोगों को बुलाते थे, फिर छोटी छोटी चीजों से डिस्कस करते थे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं। शुरू में उनको लगता था कोई फर्क नहीं पड़ता था, दे कम इन, हैव कॉफी, हैव फूड एंड वो। तीसरी आइट्रेशन के बाद ना वहाँ पे मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होना शुरू हुआ, इट बिकेम अ हब। भाई 2 लोग जुड़े, 3 लोग जुड़े, 4 लोग जुड़े। आपको ना इनोवेटिव इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए भी इनोवेटिव मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट समटाइम्स अराउंड मे बी bring do a samosa party at a certain interval, bring people in, शुरू में बात ना करें, दूसरी तीसरी दफा में से कुछ एक टॉपिक डिस्कस कर देंगे, यार इसमें हम डिस्कशन टॉपिक भी लेके आ रहे हैं, आपका ख्याल है। तो जब आप ये काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके अंदर एंगेज हों, लोगों को गैर महसूस तरीके से एंगेज करें, बोले आपकी क्या वैल्यू है। जब आप ये काम करते हैं तो लोग ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज करना और लोगों के बिहेवियर चेंज करना बहुत मुश्किल काम, ओवरनाइट नहीं हो। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और लोगों को साथ जोड़ना पड़ता है। जी Okay, जनाब, great. राहिब, यू एस्क्ड अ क्वेश्चन आई गेस, राहिब राहिब हुसैन। Assalamu alaikum. Yes, thank you so much for giving me an opportunity to ask more questions, but I will ask one question here.
So my name is Rahib Hussain. I'm a senior business analyst in a Easy Fintech UAE company. So I have a great experiences to manage the stakeholders, but every time I see the different stakeholder with different mindsets, when I was in the hospital, I had very tricky stakeholders, and they were kind of they were hard to manage the key stakeholders of the project. So is there any tactics to understand the stakeholders for the projects? Because when the stakeholder is not satisfied with the performance of the projects, so how we can manage the stakeholders throughout the projects? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब ना इस सवाल के अंदर ही है। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है वो इंसान जो स्टेक रखता हो। तो एज अ प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारा काम ये होता है कि जी हम ये समझ सकें उनका स्टेक क्या है। कुछ लोग जेन्युइन स्टेक रखते हैं और कुछ लोग आपके प्रोजेक्ट में डिरेल करना चाहते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए तो यू नीड टू हैव एन ओपन कॉन्वर्सेशन विद देम एंड अगेन डिसाइड के हाउ मीनिंगफुल एंड हाउ वैल्यूबल दे आर फॉर योर प्रोजेक्ट एंड फॉर योर एंड स्टार्ट गिविंग देम क्रेडिट। याद रखें छोटी छोटी चीजें होती है, क्रेडिट होता है उनका। इनकी इनकी ईमेल में एक लाइन लिख दी कि सर बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट दिस वाज कुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट, सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल। जब आप इस तरह की चीजें करते हैं हो सकता है लोग अरे भाई वाह आप तो बड़ा जो है ना यूं कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यू विल ऑल्सो हियर दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस बट यू नो व्हाट यू डूइंग। आप किसी को चढ़ा नहीं रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करें ताकि वो ऑन बोर्ड आ जाए। लोगों का ऑन बोर्ड लाने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे मैंने इनोवेशन के लिए बताया इसी तरीके से यू नीड टू स्पेंड टाइम, हैव सम चाय और कॉफी विद देम। मे बी इफ ही इज अ लर्नर गिफ्ट हिम अ स्मॉल बुक सो दैट यू कैन बिल्ड रिपोर्ट। लेकिन रिपोर्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको मैं अच्छा समझूंगा ना तो मैं आपको एक्सेस दूंगा अपने अपने आप तक। ठीक है, उसके तरीकेकार होते हैं। आप उनकी कोई प्रॉब्लम अगर उनको लगता है कि उनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, ट्राई टू गो आउट ऑफ योर वे एंड हैव दैट प्रॉब्लम रिसॉल्व। सो इफ दिस इज दीज आर द थिंग्स यू कैन डन, सो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। सो अच्छा, एक आई गेस काउंटर क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके अंदर काउंटर क्वेश्चन। अच्छा, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो की स्टेक होल्डर है कभी कभार ना पर्सनल होने की बहुत कोशिश करते हैं, ताकि वो जो बैड प्रोजेक्ट की बैड चीजें हैं वो भी निकाल पाए, व्हाट इज हैपनिंग बैड इन द प्रोजेक्ट। सो जब हम उसको उनके साथ पर्सनल नहीं होते ना, तो फिर वो हमारी काइंड ऑफ टांग खींचने की कोशिश करते हैं ग्रुप के अंदर, या फिर क्योंकि वो स्टेक रखते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करना, इंकरेज करना, ये तो बातें सही हैं, बट पर्सनल को आप प्रोफेशनलिज्म के साथ कैसे मतलब साइड बाय साइड एक साथ लेके चलेंगे, बहुत मुश्किल होता है। ये मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस तो हुआ है। तरीका और आ रही है, उसका तरीका आ रही है कि सर जब मुझे नई नौकरी मिल जाएगी ना ये मैं सारी बातें बता दूंगा, अच्छा। बेफिक्र रहे। यू आर ऑन अच्छा। माई टॉप लिस्ट, आई डे ट्रस्ट यू। बस जैसी नई नौकरी मिलेगी सारी बातें बता दूंगा। तो यू चलिए। यूज ह्यूमर टू डिफ्लेक्ट। ओके, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल हम्म। दूं, देन विल रैप इट ऑफ क्योंकि हम 11 मिनट ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। मैं एक मीटिंग के अंदर था, वहां पे एक हम आई वाज हेडिंग वन ऑफ द आईटी डिपार्टमेंट्स। सो बोर्ड की लेवल पे मीटिंग हो रही थी, तो वहां पे एक बहुत बड़े कंपनी के जो थे वो बोर्ड एडवाइजर थे, वो भी बैठे हुए थे। अब उनको पता था कि हम पुराना हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, हमें 10 मसाइल हैं। तो वो लेके आगे कहने लगे कि यार मुझे लगता है आप लोगों को ना एथिकल हैकर्स हायर करने चाहिए कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को पेन टेस्ट करने के लिए, फलाना ढिमाना। मैं बिल्कुल। कहा सर हाँ वेरी हाँ, ग्रेट सही। आइडिया, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम उनके एथिक्स को कैसे मैनेज करेंगे, हम ये सोच रहे हैं आजकल। जैसे ही होगा हम फौरन हायर कर लें। सब हंसना शुरू हो गया, बोर्ड का चेयरमैन हंसना शुरू हो गया, मामला वहीं खत्म हो गया। उस बंदे की मुझसे बहुत हटी, उसके बाद उसने कभी इस तरह की बात नहीं की। ठीक है, सो अगेन it's use different ways, use humor, use your confidence to deflect and sometimes direct. ठीक है, thank you very much guys, it was a fabulous थैंक यू सर। opportunity. I think I was able to share some of my knowledge to you, and it was it brought value to attend this session. Thank you so much. अगर कोई आपका सवाल हो तो मेरा email address नोट कर लीजिए, मैं बता दूंगा। You can send me at सही है, बाकी मेरी डिटेल्स आपको मॉडरेटर से मिल जाएंगी। ऐसा कोई मसला नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन राइट टू मी, एंड आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी ऑलवेज motivate you or request you to, if you want a deeper learning, there's a 2 days workshop coming in on 25th and 26th November where we talk about specifically on transformative projects. Stakeholder management is one of the part.
how to maintain clarity throughout the project, and how to manage toughest stakeholders during the journey. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का शिरकत करने का, और आई एम वेरी थैंकफुल टू लर्निंग माइंड फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद एवरीबॉडी, एंड साइनिंग ऑफ, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you everyone for joining Learning Mind. Thank you. Bye.